Good afternoon to Good all of afternoon, you. sir. Madam, sir. Good afternoon, Susan. Welcome here to all of you. Nikhil, Gautam Sharma, Monica, Tarun Lohia. Welcome everyone. Thank you, sir. Aradhana Mishra also. Welcome Aradhana. Let us begin. Now I am going to start the chapter. Yesterday, I taught you how Carter is doing investigation of dead body of Tut, and how he have done the mistake when he was doing the invention. Finally, someone is blaming on him कि during the investigation he did not take care of the dead body so that he couldn't find the exactly CT scan of the dead body, and he couldn't reach on the point where he found that how did Tut has been killed, how he has died, whether it has been killed or it was a natural death. So it was now a puzzle. The puzzle has not been solved here. जो ये पजल था और ये जो दुविधा वाली बातें थी कि टूट जो है उनका कैसे मृत्यु हुई, वो कैसे मरे, अब तक ये रहस्य की बातें रही। लेकिन उससे पहले जो राजा ने राज्य किया उसके बारे में राइटर ने हमें बताया कि किस प्रकार के उनके पापा, उनके दादा अपने राज्य में जिस समय शासन करते थे, वो शासन काल जो है गोल्डन एज माना जाता था। इट वाज ए गोल्डन एज व्हेन हिज फादर and grandfather was ruling over the Egypt. That period was known as a golden period, according to the writer. But in a very short time, Tut did rule over the Egypt, and he died. So everyone was predicting the doubts कि how and when he died. Even his father, his grandfather ruled over there for 40 years, but he ruled only there 9 years. So what was the reason behind it? It was the subject of discussion every mouth. ये उनके मेन टॉपिक हैं। तो आज जो है यहाँ कार्टर जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पता लगाने की कोशिश किया। तो आपने देखा किस प्रकार से उसके बॉडी से जो रेसिन है, कॉफिन है, वो निकाले जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने हाई टेम्परेचर पर रखा, फिर भी वो जो है मेल्ट नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने चिजल मतलब कट, उस पॉइंट को काट करके अलग-अलग कर रहे हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये जो है डेथ कैसे हुई है। फिर भी ही कुडंट रीच द पॉइंट हाउ ही डाइड। फिर भी वो नहीं पता कर पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फाइनली राइटर जो है उससे पूर्व के राजा के बारे में वो बातें कर रहे हैं। इससे पहले के जो राजा थे वो इस तरह के शासन करते थे कि वहाँ की जितनी जनता थी वो काफ़ी खुशहाल थी। उस एज को गोल्डन पीरियड माना जाता था इजिप्ट में। लेकिन आज तक ये पता लगाया गया कि इजिप्ट में जितने भी मम्मी हैं, लगभग 500 मम्मी जो है काउंटिंग किया गया था, और द काउंटिंग वाज कंटिन्यू स्टिल टुडे। यह कंटिन्यू था, अभी भी काउंटिंग। ऐसे सेवरल मम्मी वहाँ पर थे। उन सभी मम्मियों में सबसे फेमस जो मम्मी था वो था टुट की, क्योंकि टुट का मौत जो है एक रहस्य था कि वह कैसे मरा। इसलिए यह टूट की जो मम्मी है, उन सभी मम्मियों में काफ़ी जो है यह चर्चा का विषय रहा इजिप्ट में। तो फाइनली आपने देखा किस प्रकार से वो चील से काट करके उसे रेत के ऊपर फिर से वो असेंबल कर रहे हैं डेड बॉडी को। तो टिल हियर yesterday I taught you, now here I am going to share the screen. Let us see. Yeah, can you see? Okay.
today, yes, the writer was saying that today diagnostic imaging can be done with computed tomography. Computed tomography is the full form of CT. CT scan होते, तो CT का full form है computed tomography, by which hundred of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. Writer is saying that in those days when the investigation was going on, the technology was not so developed. But today, the technology is so developed that it can find the X-ray of any part. किसी भी पार्ट का आज एक्सरे हम ले सकते हैं सीटी स्कैन के द्वारा, बट जिस समय इन्वेस्टिगेशन हो रहा था डेड बॉडी का, उस समय यह साइंस टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो यही कारण है कि उनसे चूक हो गई और सही-सही सीटी स्कैन नहीं ले पाए उस डेड बॉडी का और पता नहीं लगा पाए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? फिर भी इतना सारे होने के बावजूद भी दो क्वेश्चन अब तक रह गए कि हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ ही डेथ, और मृत्यु के समय में उसकी वास्तविक एज कितनी थी। ये दो चीज को पता लगाना अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि उन दिनों टेक्नोलॉजी जो है उतने एडवांस नहीं था। किंग टूट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। कहा कि डिमाइज मतलब डेड बॉडी, उनकी मृत्यु, डेथ है। King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of dynasty. But the particular of his passing away and its aftermath are unclear. Now it's saying that it is aftermath are unclear. It is not clear how he died. इससे पहले जितने भी लोग थे, उनके फ्यूनरल को देख कर के पता लगाया जा सकता था, बट ये टूट है उनके डेड बॉडी को देख कर के आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कैसे, हाउ डिड ही डाई, अनक्लियर। तो अमनटीप थर्ड मीन्स आई स्टडी आई टॉट यू कि हाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन किंग दो हु रूल्ड ओवर देयर, आई मीन हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। तो देन वी वेर हियर, yeah, regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Yesterday I taught you here कि जितने भी वहाँ मम्मियाँ पड़ी हुई थी इजिप्ट में, उन सब में सबसे पॉपुलर जो मम्मी था वो मम्मी था टूट का। हाउ मेनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कितने मम्मी वहाँ है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and still counting. 2003 तक till here it was 600 mummy here, and now it was continue, counting was continue, अभी भी continue था। The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simon। वहाँ एक सोसाइटी है आ, आ, इजिप्ट में, जिन्होंने एक बहुत अच्छे जो है सीटी स्कैन जो है ना वो डोनेट किया है। A portable CT machine donated by the National Geography Society, NGS। ये एक सोसाइटी है इजिप्ट में जिन्होंने इस मशीन को डोनेट किया था। डू नो इट इज ए वेरी कॉस्टली। सीटी स्कैन जो मशीन होते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं बेटा। कम से कम नहीं तो 10 से 20 लाख के बीच में एक मशीन का कॉस्टिंग आता है। तो ये मशीन जो है
कोई सोसाइटी जो है वहां पर डोनेट कर रही है कि ताकि जितने भी लोग हैं इस प्रकार के जो केसेस आए उससे पता लगाया जा सके। आ, इससे इजी हो गया वहां की जनता के लिए। तो ये सोसाइटी जो है वहां डोनेट करती है ये मशीन को। इट्स मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर जो है सोसाइटी एंड सीमेन, सीमेन कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा बना हुआ मशीन जो है इस सोसाइटी ने डोनेट किया वहां। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। पूरे यूनान में यह पहला मम्मी है जिसको सीटी स्कैन करने की आवश्यकता पड़ी है। इन डेथ एज इन लाइफ आर मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, क्योंकि जो कंट्रीमैन है मतलब द पीपल दो हु आर लिविंग देयर दैट इज द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन मतलब वहां के रहने वाले लोग को कंट्रीमैन बोलते हैं, वहां की जनता। करा कि क्योंकि जनता के बीच में ये चूंकि ये बातें फैल चुकी थी कि इतने कम समय में राजा की मृत्यु कैसे हुई, यही कारण है कि वहां सीटी स्कैन जो है लाना पड़ा और सीटी स्कैन करना पड़ा। इससे पहले किसी प्रकार का इस तरह का कोई भी र्यूमर वहां पर नहीं फैला हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम था इजिप्ट में कि किसी राजा के डेड बॉडी को स्कैन किया जाता है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई किसी के डेड बॉडी को जमीन से निकालता है तो उसे हम क्या है, ये अशुभ माना जाता है। बहुत मर्तबे ऐसा होता है कि किसी के डेड बॉडी को कोई क्या किया, वहाँ कोई जानवर ही है या उसे गड्ढा खोद दिया या कोई वहां से डेड बॉडी को लेके चला गया, या इस तरह के कांड बहुत सारे देखने को मिलते हैं। या विशेष रेयर केस में जब कोई पुलिस केस हो जाती है तो वैसे केस में जो डाउट होता है तो उस समय में है सीबीआई क्या करती है कि कभी-कभी डेड बॉडी को जो बरी किया गया है, वो जो जलाया गया है वो तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट जो बरी किया जाता है डेड बॉडी और उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई आरोप लग गया कि नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने इसे मार दिया है, जहर दे दिया है, हमें डाउट है और केस कर दिया, तो वैसे परिस्थिति में कभी-कभी क्या है कि डेड बॉडी को ज़मीन से बाहर निकालना पड़ता है, जैसा कि ये इजिप्ट में किया जा रहा है। लेकिन ये सब जो है अशुभ माना जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद जब वो मर गया, तब उसके डेड बॉडी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, ये एक अशुभ बातें है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं राइटर कि इजिप्ट के इतिहास में it was the first time in the history of Egypt where uh, the dead body of any king has been taken out from the tomb. किसी tomb से बाहर निकाला जा रहा है and it is doing being the CT scan here. A CT machine scanned the mummy head to toe. A CT machine scanned the mummy head to toe. कहा कि ऊपर सिर से लेकर के टो, जो पैर के अंगूठे होते हैं, टीओ टो है ना, टो मैंने पैर का अंगूठा, हेड ऊपर से लेके नीचे तक का वो सीटी स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेज इन क्रॉस सेक्शन। इतने जो है डिजिटल एक्सरे निकाला गया 1700 फाइंड आउट करने के लिए इन क्रॉस सेक्शन। टूट्स हेड scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes one eerie detail in the resulting image. Means it was very difficult to find the result. So every section of the body it has been taken to the CT scan. दैट्स वाई ना इट हैज बीन चीजल। चीजल मतलब काटा गया, ताकि काटने के कारण उसके ईच पार्ट का सीटी स्कैन किया जा सके और अच्छी तरह से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो यहाँ पर वही काम जो है हो रहा है, क्योंकि अभी किसी ने डोनेट किया है, एडवांस जो है टेक्नोलॉजी से आया हुआ ये सीटी स्कैन है, अब उसके द्वारा ये किया जा रहा है। रिजल्टिंग इमेज विद टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली recorded. A team of specialists in radiology, forensic
Similarly, recorded a team of specialists in radiology, forensic, and anatomy began to probe the secret that the winged gorgeous of a gilded burial shrine protected for so long. जो so long मतलब for long times it was buried here, जो इतने समय से जमीन के अंदर दफनाया गया है, उस डेड बॉडी को निकाल करके आज उसके एक एक पार्ट का सीटी स्कैन किया जा रहा है। जो इतने लंबे समय से सो लॉन्ग, इतने समय से जो है उसे बरी करके रखा गया है, गिल्डेड बरियल। गिल्डेड मतलब कवर्ड विद द ऑर्नामेंट्स। जो ऑर्नामेंट्स से उसे कवर किया गया है, उस डेड बॉडी को आज सीटी स्कैन किया जा रहा है। द नाइट ऑफ द स्कैन द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। वो जो बॉक्सा है उसी में उसे बाहर निकाल रहे हैं। इन बॉक्स लाइक पहले बियरर, they climbed a ramp and a flight up stair into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic a lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. Raki, what the equipment it was required for the CT scan, it all had been brought there. जो जो मशीन की आवश्यकता पड़ी, वर्कर, मशीन, जो भी आवश्यकता पड़ी, उसे ट्रॉली से बाहर जो है डेड बॉडी को निकाला गया, क्योंकि बाहर निकालने का मतलब है कि वो काफ़ी हेवी था ना, उसे ट्रॉली करके नीचे मशीन लगा करके और उसे बाहर निकाला गया। क्योंकि जिस साबूत में वो रखा गया था, वो तो काफ़ी हेवी होता है ना, इसमें डेड बॉडी को नीचे ज़मीन में दफनाया जाता है, तो उसे निकालने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा है बाहर लाने में। उसके लिए क्या-क्या उन्हें झेलना पड़ा। स्टीयर इन द स्विर्लिंग सैंड outside, then rose on a hydraulic life into the trailer that held the scanner. फिर वो स्कैनर को वहां पर लाना पड़ा। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fan. एक प्लास्टिक का फैन वहां लाया गया। The $1 million scanner had quit quite because of sand in a cooler fan. Course of Pharaoh joked a guard nervously. हाँ, कि देखो ये दिखाया जा रहा है, उनके जो डेड बॉडी को जो बाहर निकाला गया, तो उसको जो है फैन दिया जा रहा है। फैन मतलब हवा किया जा रहा है। तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, तो वो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, वो जो है जोक माने मज़ाक कुछ लोग कर रहे हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में वो हँस रहे हैं कि देखो आज जो डेड बॉडी है, उसका पंखा झुलाया जा रहा है। लोग क्या है, ये विस्परिंग है। विस्परिंग मतलब आपस में धीरे-धीरे बात हो रही है। जोर से बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग मज़ाक कर रहे हैं, जोक। जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। वहाँ जो गार्ड है, वो नर्वसली जो है वो जोक कर रहा है यहाँ पर, कि देखो क्या-क्या हो रहा है। कर्स ऑफ द फारो। कर्स मतलब क्या होते हैं? श्राप देना। मतलब जो राजा होते थे वहाँ, जो ऐसे कोई गलत काम करते थे, उनको श्राप दे दिया जाता था। हाँ? तो ये सारी घटनाएँ वहाँ पर होती थी। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन्स वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, क्योंकि ये सब करने में वहाँ पर ये सब काम करना पड़ा, क्योंकि प्रोसीजर था, माने इट वाज़ द रूलिंग। वहाँ सिस्टम में ऐसा ही नियम था कि इससे पहले ऐसा करना होगा, तब जाके क्लियर जो है उसका एक पिक्चर आएगी, क्योंकि वहाँ सैंड से भरा हुआ था ना ऊपर में सभी। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। चेक किया गया, वहाँ पर कोई डाटा जो है खोया हुआ नहीं था, जो भी था वो डाला हुआ सब कुछ था। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन हू कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। कहा कि कॉफिन से हटाने के 3 घंटे के बाद फिर वापस उसे वहीं पर ला गया गया।
from his coffin. The pharaoh again rested in peace where the funerary priests had led him so long ago. फिर फाइनली सिटी स्किंग करने के बाद फिर जो फारो है वहाँ के राजा टूटे, उनके डेड बॉडी को फिर उसी जगह पर सेम प्लेस पर ला करके फिर जो है रख दिया गया। बैक इन द ट्रेलर a technician pulled up astonishing images of two on a computer screen। वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका एक पिक्चर लिया जा रहा है। हाँ, तस्वीर उनकी ली जा रही है वहाँ पर रखने से पहले। Put on a computer screen, a gray head took shape from a scattering of pixel and the technician spun and tilted it in every direction। हर डायरेक्शन में जो है ना वो घुमा घुमा के चेक कर रहा है। मतलब है आप एक्सरे जब गए होंगे देखेंगे, एक्सरे मशीन जहाँ होती है, सीटी स्कैन होता है, वो एक ईच एंड एवरी पार्ट को जो है आपको घुमा करके वो पिक्चर लेता है। मैंने कभी आगे, कभी दाएँ, कभी लेफ्ट, कभी राइट, ना कभी अप, कभी डाउन जो है, क्योंकि उसे पता लगाना होता है ठीक से ना। तो उसी प्रकार से इनके डेड बॉडी को जो है एवरी पार्ट को जो है वो उनको स्पिन करके, स्पिन माने घुमा-घुमा करके, स्पन लिखा हुआ है ना, स्पन मतलब स्पिन, उसे घुमा-घुमा के उनके फोटो लिया जा रहा है। Spun and tilted it in every directions. Neck vertebrae, neck गर्दन की बात हो रही है। Neck vertebrae appear as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several view of the rib cages, and a transection of the skull। खोपड़ी का, हाँ, अलग अलग पार्ट का पिक्चर लिया जा रहा है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवा स्माइल। ये सब देख करके जाही, जैसा कि ऊपर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, सेक्रेटरी जो था वहां का, और वो क्या कर रहा है, ये सब देख करके मुस्कुराता है कि किस प्रकार से उसे दाएं, कभी बाएं, कभी अप, कभी डाउन, ये जो पिक्चर लिया जा रहा है, ये देख करके जो जाही है, जैसा कि ऊपर पढ़ाया गया आपको, है ना? जाही हवन स्माइल्ड, वो हवास जो है स्माइल करता है। ये जो सेक्रेटरी है, क्योंकि ऐसे ही पहले इसको तो डाउट था कार्टर पर कि कार्टर ने ठीक से अपना काम नहीं किया, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे कार्टर साहब। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। वो बोल रहा है कि एक तो मैं पिछले रात भी नहीं सोया इसके चक्कर में, और अभी भी कुछ ना कुछ जो है रॉन्ग हो रहे हैं। नॉट फॉर ए सेकेंड ही शेड, एक सेकेंड तक मैंने लास्ट नाइट जो है मैंने एक सेकेंड तक भी नहीं सोया है। ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब जो है मुझे सोना चाहिए। अब हमारी जो ये शरीर है वो जो है अब टायर्ड हो चुका है। अब मैं ज़्यादा जो है देर तक मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे अब तो सोना होगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, descending metal stair to the sandy ground, the wind had stopped। अब हवा जो है चलना बंद हो गई। जैसा कि पहले आपको पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में ही कि व्हाई ही सेइंग अबाउट द विंड, हवा की बातें क्यों हो रही बेटा? क्योंकि आपने देखा था कहानी में, जिस समय उसके डेड बॉडी को वहां निकाला जा रहा था, उस समय अचानक वहां की जो वेदर है वो चेंज हो गए थे। जो एयर है और वो काफी विंड जो है स्ट्रांग हो गई थी, जिस समय उनका डेड बॉडी को निकाला जा रहा था, वो एक घोस्ट का रूप ले लिया था। आंधी तूफान आने लगा था, आकाश में काले काले बादल छा गए थे। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सारी इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने जो राजा के डेड बॉडी को जमीन से बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए यहाँ एक उसका जो है प्रेतात्मा जो है वो यहाँ पर चक्कर लगा रही है, और उसी के कारण यहाँ पर अंधेरा हो गया। अचानक आकाश में बादल छा गए और हवाएं तेज चलने लगी।
ऐसा लोगों का वहाँ पर एक गेसिंग था, अनुमान था ऐसा। तो वही है अभी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या हो गई, हवा जो है वो बंद हो गई। अ विंड हैड स्टॉप्ड। अब जो हवाएँ तेज़ चल रही थी उस समय से लेके अब तक, अब ये जो हवा जो है क्या हो गई, वह धीमी हो गई। मतलब है कि उनके डेड बॉडी को जो बाहर निकाला गया, तो कुछ अजीब-सी हरकत वहाँ पर होने लगी थी। ना माने तूफ़ान आ गए थे, आकाश में काले-काले बादल छा गए थे। तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि किसी के डेड बॉडी को यदि हम बाहर निकालते हैं तो अशुभ माना जाता है, लोगों का ऐसा कहना है। तो उसी प्रकार से इजिप्ट में इनके डेड बॉडी को निकाला गया तो लगा है जैसे कि कोई घोस्ट जो है ना, वो उसकी प्रेतात्मा जो है, वो बाहर आ गई हो और ये सब काम कर रही है वहाँ पर। तो द विंड हैड स्टॉप्ड, कब स्टॉप्ड हो गई? जब वो डेड बॉडी को पुनः फिर जो है उसी प्लेस पर ला कर के रख दिया गया, उसी बरी किया गया, तब हवा जो है यहाँ पर अचानक बंद हो गई फिर। द विंटर एयर लेक कोल्ड, ठंडी की दिन थी, हवाएँ ठंड हो गई एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड, और जैसे शांति छा जाता है मृत्यु होने के बाद जब कोई डेथ करता है, तो पूरा साइलेंस हो जाता है ना, तो जो एनवायरनमेंट था वो फिर से वहाँ एक बार घाटी में वैली, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड ना, ये पूरे माहौल वहाँ बिल्कुल शांत हो गया। जस्ट above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. जैसे कोई मरता है तो टुम्ब जो है ना, टुट्स टुम्ब स्टूड ओरियन, जैसे वहाँ उनके सामने, जैसे देखे होंगे आप लोग गए होंगे, जो क्रिश्चियन लोग जैसे धर्मावलंबी जो होते हैं, वो देखेंगे तो उनको एक शिला मतलब पत्थर, डेड बॉडी जो होता है ना सिर के पास में, आई थिंक वहाँ एक पत्थर का जो है ये स्मारक के रूप में लोग खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर उसका नाम या डेट ऑफ बर्थ या मरने की जो आयु है या डेट है, उसके ऊपर उसको मेंशन कर दिया जाता है वहाँ पर। ऐसा लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग जो हैं, धर्मावलंबी जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को जो मानते हैं, ईसा मसीह जी को, तो वैसे लोग जो है जा कर के अपना डेड बॉडी के सामने वो एक पत्थर या डाल देते हैं, और उस पत्थर पर उसके मरने के डेट, ये सब उसके एज, ये सब उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो है, एक टॉम के सामने एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन, जो प्राचीन काल में जो राजा की पहचान होती थी, न्यू एज द सोल ऑफ ओसिस, जैसा कि ये वहाँ का एक फेमस सोल है, उसके नाम पर वहाँ एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाया गया, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और इसे भगवान के रूप में लोग वहाँ मानने लगे उसको, वहाँ का लोग जो है उसे पूजा करने लगे भगवान मान करके उसे, आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय किंग, और उसे बॉय किंग कहा गया। बॉय किंग इसलिए कहा गया क्योंकि वह एक बॉय था, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी एज जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम एज में जो है उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए वहाँ किंग ना कह कर के उसे क्या कह रहे हैं लोग? द बॉय किंग कह रहे हैं, ओवर द बॉय किंग। बॉय किंग मीन्स मतलब कि इन अ वेरी लेस एज दिस किंग हैज़ बीन डेड हियर। तो आपने देखा किस प्रकार से एक कल्चर को शो किया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार इजिप्ट के लोग जो हैं, दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर द डेथ, कि वो मरने के बाद के जीवन पर किस तरह से ये भरोसा करते हैं। वहाँ के जो राजा है उसे फारोह कहा जाता है, और डेड बॉडी जो बरी किया जाता है उसे मम्मी कहते हैं, और किस प्रकार से लोग जो है उनके विश को, जो लिविंग लाइफ में जो कुछ वो चाहते थे, उनके डेड बॉडी के साथ में वो सब कुछ उनके साथ में जो है, वो बरी किया जाता है। तो इससे शो होता है कि जो इजिप्ट के लोग हैं, वो कितना जो है अपने डेड बॉडी को जो है, वो प्यार करते हैं। मरने के बाद के जीवन को भी वो कितना अच्छी नज़रिए से वो देखते हैं।
ये ट्राई किया गया है दिखाने का। इसे बोलते हैं बिलीव आफ्टर डेथ। मैंने मृत्यु होने के बाद तक, जीवन में जब तक था वो तो था ही, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो तो थी ही, लेकिन मरने के बाद भी लोगों को ऐसा यकीन होता है कि यह राजा जो है फिर से जिंदा होगा और इससे धरती पर कहीं न कहीं किसी पार्ट में वह किसी के घर में जाकर के जन्म लेगा और यहाँ का फिर से एक राजा बनेगा। इसलिए उसकी इच्छाओं को जो है, हमें जो उसकी विश है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा इजिप्ट के लोग विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के कारण उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब उसके साथ में डाल दिया जाता है। ताकि वो किसी घर में जन्म ले, तो उसे ऐसा आभास ना हो कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे जो डेड बॉडी है, उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, एक ऑनर नहीं दिया गया है। तो लोग जो है आफ्टर डेथ इस तरह के वहाँ लोगों में इस तरह की भ्रांतियाँ हैं, इस तरह के लोगों में बिलीव है। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, बट जो जहाँ का कल्चर है, कस्टम है, वहाँ के लोग उसे फॉलो करते हैं। तो राइटर यहाँ ये भी दिखाने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से एक डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसे सीटी स्कैन किया जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कि वह कैसे मरा, कब मरा, कितने एज में मरा। तो ये सब जो बातें हैं दिखाने की कोशिश किया गया है कि एक जो जो चला गया यहाँ से, जिसकी डेथ हो गई, अब उसके मतलब होते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। आपने मुहावरे सुना होगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना। मतलब जो गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ना मतलब फिर से समस्या को सामने लाना। जो समस्याएँ समाप्त हो गई थी, जिसे लोग भूल गए थे, उस प्रॉब्लम को फिर से समाज के ऊपर लाना और उसे एक नए रंग देना। तो क्या है कि जो मामला समाप्त हो गया है, जो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है, जो समाप्त हो चुकी है, फिर से उसे ज़िंदा किया जा रहा है और फिर से एक अलग जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है वहाँ पर, जो कि यह उचित नहीं है। तो वही राइटर कहना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट गुड, कि जो चला गया सो चला गया। अब इस गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आफ्टर डेथ जो है पॉपुलैरिटी जो है उसी को मिलती है, जो अच्छे काम करके जाते हैं। जैसे हम अपने लाइफ में कितना अच्छा काम किए, कैसे हमने जीवन व्यतीत किया, एक राजा का सब्जेक्ट जो प्रजा होती है उसके साथ में कैसा उसका बिहेव था, कैसा कर्म किया उसने, यही बातें जो है हमारे जीवन में रह जाती है और इसी को जो है लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पॉपुलैरिटी का आधार जो है, बेस है, ये हमारा कर्म है। हाँ? तो वो राइटर कहने का कोशिश करता है यहाँ कि लोग जो है अननेसेसरी उनके साथ में जो उसकी चॉइसेस होती है उससे लोग वहाँ ये करते हैं। ये सब जो है फालतू की चीज़ें हैं, इसमें कोई ये नहीं है, कोई मतलब कि पॉजिटिव बातें नहीं है। नाउ लेट अस सी हियर आई एम डिस्कसिंग हियर व्हाट द एक्सरसाइज इट हैज बीन गिवन। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। King Tut's body has been subjected to a repeated scrutiny। मैंने उसकी स्क्रूटनी मतलब कि इन्वेंशन इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, क्यों किया जा रहा है? यहाँ जो है किंग के टूट जो हैं उनके बॉडी को क्यों वो जो है फिर से जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? जांच परख करना, इन्वेस्टिगेट करना। डेड बॉडी को यस क्यों सर। किया जा रहा है? व्हाई? सर क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनका नेचुरल डेथ था या कोई साजिश के कारण। या करेक्ट, बिकॉज द पीपल वांटेड टू नो what was the real reason behind his death, because in a very less time, in a very less age, na he died. He ruled over there only 9 years. So in this less age he died. So the people wanted to know why and what had happened with him. That's why na, the scrutiny was going there.
गॉट क्लियर? यस सर। यस राइट। सेकेंड है हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रीसेंटेड। रीसेंट मैंने फिर से किया जाए ना, क्यों? उनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो रीसेंटेड, फिर से क्यों भेजा जा रहा है करने के लिए? जो हावर्ड कार्टर हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, हावर्ड कार्टर तो दोनों ना, ही वाज ए आर्कियोलॉजिस्ट, तो ही वाज आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन दोज डेज the technology was not so advanced, so whatever the investigation has been done, it was not so correct, right? तो that's why it has been resented, फिर से जो है इसे किया जा रहा है, क्योंकि उस समय जो है वो ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया गया उसे, और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, प्रॉपर तरीके से सीटी स्कैन नहीं हो पाया। तो नई जो मशीन आई, जो सोसाइटी ने डोनेट किया, ये जो है डेवलप्ड मशीन था, तो इसलिए ये फिर से जो है इसे करने की नौबत आई, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसमें उतना डेवलप नहीं था, तो जो है स्कैनिंग ठीक से नहीं किया जा सका उसे, तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिसेंटेड, फिर से जो है किया गया।